Jai Gurudev students. Students, welcome once again in the economics class. Students, just now you have given your first unit test examination in which the unit first and unit second is coming from the microeconomics. Now we are taking the next part of this our syllabus. That is in the second unit we are taking the theory of demand. Theory of demand chapter, students, I have explained you earlier also, and now but it is not complete. So today I am starting the chapter with a quick revision, and then we are continuing with the further topics. Now, theory of demand. Theory of demand, students, demand means desire to buy a commodity. But desire and demand are the two different things. Why? Because desires are many and demands are only that desire which we can fulfill, which we are able to fulfill is known as demand. डिज़ायर और डिमांड में क्या अंतर है कि डिज़ायर तो हमारी बहुत सारी होती है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन हम हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते. सिर्फ हम उन्हीं इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए हमारे पास पैसा हो. तो वो इच्छाएं, वो डिज़ायर जिसको कि हम पूरा कर सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, दैट इज़ नोन एज डिमांड. सो डिमांड, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट when we are having sufficient purchasing power to fulfill that desire is known as demand. Demand and the concept of demand, that demand and quantity demanded. Demand and quantity demanded are the two different things. Demand means the different quantities of the commodity that the consumer wants to buy, and quantity demanded, that the specific commodity at a specific price. Now, what will be the exact definition of demand and quantity demanded? Demand means it refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of the commodity. Means demand वो है, वो किसी भी गुड्स की वो क्वांटिटीज है जो कि एक कंज्यूमर जो है उस गुड्स को खरीदने के लिए तैयार है और उस पर्टिकुलर प्राइस में. That means at that particular price of the commodity, the consumer are buying different units is known as demand. And quantity demanded का मतलब है कि specific quantity and specific price. यहाँ पर हमने quantity, यहाँ पे डिमांड के साथ हमने क्वांटिटी के साथ स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर दिया है, तो इसलिए हम क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे. क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में डिफरेंस क्या है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी मीन्स सपोज वी वांट्स टू purchase the commodity and we are going to the market to purchase the commodity, but when we wants to purchase the commodity, suddenly the price of the commodity rises or the price of the commodity falls, so our demand also change. हम जब जाते हैं कोई चीज़ खरीदने तो हम देखते हैं कि प्राइस उसका एकदम से बढ़ गया या प्राइस कम हो गया. अगर प्राइस बढ़ता है तो हम कम यूनिट्स खरीदते हैं और अगर प्राइस कम होता है तो वी आर परचेजिंग मोर. That means the specific quantity is affected by the specific price of the commodity. Means अब उस commodity का price अगर उसकी change होता है तो उसके change होने से हमारी जो quantities हैं, जितना हम खरीद रहे थे उस पर क्या effect पड़ता है, हम ज़्यादा खरीद रहे हैं कि कम खरीद रहे हैं, that is known as quantity demanded. Means specific quantity at a specific price. That means quantity demanded means it refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity. इसका मतलब है कि जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं पहले हम उसका प्राइस देखते हैं और उस पर्टिकुलर प्राइस में वी आर रेडी टू परचेज द कमोडिटी, बट सडनली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, एकदम से प्राइस बढ़ जाता है, तो अब हम जितना पहले खरीदते थे हम उतना नहीं खरीद सकते. हो सकता है हम अब कम खरीदें, और अगर प्राइस कम होता है तो हो सकता है हम ज़्यादा खरीदें. तो ये हमारी जो ज़्यादा या कम जो हम खरीद रहे हैं गुड्स को, वो किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी क्वान्टिटी के ओन प्राइस से. मीन्स उस कमोडिटी के प्राइस की वजह से अगर उसकी डिमांड में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड. स्टूडेंट्स, डिमांड इज ऑफ टू टाइप, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन. When we are talking about the demand of the single consumer or the single person, it is known as individual demand. और जब हम एक से ज़्यादा consumers की बात करते हैं तो वो कहलाता है market demand. That means when we are talking about the demand of more than one consumer or many consumer, it is known as market demand.
So how many types of demand are there? Two types, that is individual demand and market demand. इंडिविजुअल मीन्स डिमांड ऑफ द सिंगल पर्सन, हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और जब हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो उसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे. सिमिलरली, like individual demand and market demand, there is a individual demand curve and the market demand curve. Individual demand curve and the market demand curve, how we can get individual demand curve when we are making the graph, when we are having the graph of the single commodity, single consumer. When we are showing the demand of the single consumer, it is known as individual demand. और जब हम एक बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो इट इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व. एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल इज ऑल्सो टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल and market demand schedule. Schedule means tabular presentation of anything. Here we are presenting demand. So tabular presentation of the demand of different commodities is known as individual demand and market demand. Individual demand, अगर हम एक ही कंज्यूमर की डिमांड को हम टेबल बना के प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी. अगर हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स की डिमांड को प्रेजेंट करेंगे तो वो मार्केट डिमांड की जाएगी. सो इट इज known as individual demand schedule and market demand schedule. That is the tabular presentation of the demand of one consumer is known as individual demand schedule, and when we are presenting the demand of many consumer, it is known as market demand schedule. And with the help of schedule, when we are making the graph, so it is known as demand curve. And this demand curve is also two types, that is individual demand curve and the market demand curve. Individual demand curve means the demand of the single consumer, and market demand means the demand of more than one consumer or many consumer in the market. So students, you can understand what is demand, what is quantity demanded, what is individual demand, what is market demand, what is individual demand schedule, what is market demand schedule, and individual demand curve and market demand curve. इंडिविजुअल और मार्केट में डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल मीन सिंगल पर्सन, और मार्केट का मतलब जब एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स के बारे में हम बात करते हैं, या एक उसमें दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, डिमांड फंक्शन. व्हाट इज डिमांड फंक्शन? सो डिमांड फंक्शन, यू नो, डिमांड फंक्शन मीन्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. Demand of X commodity is equals to functional relationship with different factors. इसी को हम डिमांड फंक्शन कहेंगे. डिमांड फंक्शन मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड को इफेक्ट करते हैं. अगर वो एक ही व्यक्ति की डिमांड को इफेक्ट करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाएंगे. एंड व्हेन इट अफेक्ट द डिमांड ऑफ मेनी कंज्यूमर एट अ टाइम इज नोन एज मार्केट डिमांड फंक्शन. तो जिस तरह से डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल और मार्केट, इस तरह से डिमांड फंक्शन भी दो तरह का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. सो अभी हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है. डिमांड फंक्शन का मतलब कि वो फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं. डिमांड को इफेक्ट करते हैं मतलब सपोज अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं और अगर हम मार्केट जाके ज़्यादा खरीद लेते हैं तो वो हमारी डिमांड इफेक्ट होगी, और अगर हम मार्केट जा रहे हैं ज़्यादा खरीदने लेकिन हम कम खरीदते तो भी हमारी डिमांड इफेक्ट होगी. और वो किस कारण से इफेक्ट होगी, किस रीज़न से इफेक्ट होगी, दे आर नोन एज फैक्टर्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट फैक्टर्स आर नोन एज डिमांड फंक्शन. और ये फंक्शंस जो हैं, डिमांड फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मीन्स जब हम एक ही कंज्यूमर्स की डिमांड को इफेक्ट पड़ रहा है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. और जब बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को इफेक्ट पड़ेगा तो वो मार्केट डिमांड फंक्शन कहलाएगा. टोटल हम उसे कहेंगे डिमांड फंक्शन. दैट इज डी एक्स मीन्स डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू एफ. का मतलब है एफ इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स. जब ये फैक्टर्स इसके साथ फंक्शनल रिलेशनशिप, इनकी रीजन जब ये आपस में रिलेशन होता है तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है. और ये फंक्शन रिलेशनशिप जो है वो इंडिविजुअल और मार्केट दोनों को मिक्स करके बनाई है. दैट इज सपोज पहले हमारा था है पी एक्स, देन पी आर, देन टी, देन ई एक्सपेक्टेशन, देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन साइज.
सो ये टोटल जो है दे आर नोन एज डिमांड फंक्शन, और इसमें से इनको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड दे आर नोन एज मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें हमारा एक और है इनकम, वाई, दिस इज इनकम एंड दिस इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज 5 फैक्टर्स आर नोन एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और ये 2 फैक्टर्स जो है मार्केट डिमांड फंक्शन कहलाएंगे। जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल इज नोन एज डिमांड फंक्शन। सो व्हाट इज दीज डिमांड फंक्शंस और डिमांड फैक्टर्स? ये डिमांड फैक्टर्स क्या है? ये डिमांड फैक्टर्स मीन्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है पीएक्स। पीएक्स का मतलब प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। Price of the own commodity, you know students, when the price of the commodity increases, the demand decreases, and the price of the commodity decreases, the demand increases. Means there is an inverse relation between price and demand. Price में demand में opposite या inverse relation है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इसी को हम कहेंगे प्राइस ऑफ द पीएक्स मीन्स प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सेकेंड आई हैव टेकन पीआर। पीआर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, यू नो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच अदर। एक गुड दो तरह के गुड्स हैं जो कि अगर एक अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह हम उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफी। टी अगर नहीं है तो उसकी जगह हम कॉफी पी सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, इट इज नॉन ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एक साथ दोनों गुड्स को हम एक साथ यूज करें, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। वो 2 अलग अलग गुड्स है लेकिन उनको हमें एक साथ यूज करना पड़ेगा, जैसे कार और पेट्रोल। कार हमने खरीद ली बट पेट्रोल नहीं लिया तो क्या होगा कि कार का कोई यूज नहीं है। मोबाइल एंड द सिम कार्ड, मोबाइल ले लिया लेकिन सिम नहीं डाली तो भी कोई यूज नहीं है। तो व्हेन द 2 गुड्स आर डिफरेंट गुड्स आर टेकन टुगेदर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। एंड बोथ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर नोन एज रिलेटेड गुड्स। तो पीआर का मतलब है रिलेटेड गुड्स। जब रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो हम उसका दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज टी और कॉफ़ी, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों की डिमांड एक साथ मूव करती है। सपोज कार अगर हमने खरीदी है तो कार महंगी है तो हम कार को कम खरीदेंगे, तो कार के साथ अगर पेट्रोल भी महंगा है तो पेट्रोल को भी हम कम खरीदेंगे। मीन्स बोथ दैट यू टेक इफेक्ट डिमांड टुगेदर, सो दे आर नोन एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। अगर हम कोई चीज़ महंगी है, हम उसे खरीदना चाहते हैं लेकिन वो बहुत महंगी है बट उसको मार्केट में वही फैशन में उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है कंज्यूमर्स का, तो ही कैन परचेज द कमोडिटी एट एनी कॉस्ट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। ई मीन्स एक्सपेक्टेशन। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी द गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन फ्यूचर तो अभी हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। या सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में गुड्स जो है वो सस्ते में मिलेगा तो अभी हम उसको कम खरीदेंगे। दैट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड। नेक्स्ट इज वाई। वाई मीन्स इनकम। इनकम ऑफ अ पर्सन ऑल्सो इफेक्ट्स डिमांड। अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड्स कम होगी। बट इनकम में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। इनकम के अकॉर्डिंगली हम गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इन्फीरियर गुड्स एंड द नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स, यू नो दे आर वेरी चीप गुड्स। सस्ते गुड्स होते हैं जो कि मार्केट में रोड्स में बिकते हैं, रोड के साइड में ठेले वाले के पास बिकते हैं, तो दे आर वेरी चीप गुड्स। सपोज अगर इनकम इंक्रीजेस तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो हम सस्ती चीज़ें नहीं खरीदेंगे, महंगी चीज़ें खरीदेंगे। तो दैट इज इनकम ऑल्सो इन्फीरियर गुड्स। वेन इनकम इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेस। एंड नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। सो व्हेन द इनकम इंक्रीजेस आवर डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। हम और ज़्यादा खरीदेंगे, पहले हम 1 खरीदते थे हम 2 खरीदेंगे नॉर्मल गुड्स क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो इनकम ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। ये 5 जो फैक्टर है इनको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स या फंक्शन। नेक्स्ट 2 मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन साइज। ये 2 जो है ये मार्केट डिमांड फैक्टर्स में आते हैं। ये सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को एक साथ इफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर इफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द पर्सन इंडिविजुअली। ये अलग अलग पर्सन की अलग अलग तरह से इफेक्ट कर सकती है डिमांड को, लेकिन ये जो है कॉमनली सभी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो इसी को हम कहेंगे, इनको हम कहेंगे मार्केट डिमांड
फैक्टर्स या फंक्शन. मार्केट डिमांड फैक्टर्स में आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन साइज. वाईडी मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यू नो, जब हमारे इकोनॉमी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर मेनी, like salary, wages, rent, interest and profit. And income distribution is also unequal. Means some people are rich and some are poor. So those who are rich, they are having more demand. Those who are poor, they are having less demand. Income distribution से भी demand पे effect करता है. अगर income distribution equal होगा तो demand of the commodity will be increases. अगर income distribution unequal होगा means more people are poor, तो demand also affects accordingly और demand जो है वो कम होगी. P for population size. Population size, you know, कि when the number of people are more, the demand of the commodities are also increasing, and when the number of people are less, the demand of the commodity are also falling or decreasing. So population के साथ साथ डिमांड बढ़ती है. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी. ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर नोन एज डिमांड फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या हम इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं. Now students, I think you can understand what are demand functions, what are demand factors. ये हमने आपको एक रिवाइज करवाया था ऑलरेडी. ये सारे फैक्टर्स जो है हमने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे डिटेल में. सो इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल दीज फैक्टर्स, so you can go through with the previous video. And now I think you can understand कि ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो हैं ये डिमांड को इफेक्ट करते हैं. मीन्स द पर्सन कैन परचेज मोर or the person can purchase less, and it is of two type, that is individual demand factors and the market demand factors.